So there is a procedure that has to be followed. It is a very standardized procedure and every company has to follow this procedure. So this is a part of that process that we are doing it here. So it will be a 2 days program, today and tomorrow. And so I made it very simple and interactive kind of session. We'll go very slowly to understand the entire requirement of the auditing standard. Let's move into the program. So if I say how to, let me admit one more guy. Okay. How to become a qualified auditor. This is our, requirement. Can anybody speak? To become a good auditor, what he needs to, do or what is supposed to be done. So what do you suggest? The foremost requirement is to understand the system. Okay. It is supposed to be understood in case where there is a qualified system. You have to get yourself qualified for the system to become an auditor, maybe by examination. Okay. And further, because the basic requirement is just first is understanding the system. Okay. So Pooja is saying understand the process flow along with the mitigation plans, risk and all. Okay. So this is one more response I'm getting on chat. So let's understand how to go through a qualification process and how this program is designed. So I'm moving to the next requirement to understand this. So I'm comparing with a profession. Do you know that auditing is a full-time profession? It is a professional requirement. It's like a doctor, lawyer. It's a full-time profession, but we are doing it here part-time. Correct? You will be doing your job, but sometime you will be doing the auditing process. So what I want to say, in actual practice, it is a full-fledged or full profession. Okay, like certification body. If somebody has heard of CB bodies, right? So CB bodies, if you have heard of, is a full-time profession. So anybody can adopt a profession, but you have to do it part-time here. So how to do it part-time? We'll go through the process. So it's called internal auditor here. So we are using the term internal auditor here. So I'm going to an internal auditor program that you have to understand. We are going through an internal auditor program. So I'm just comparing that with a lawyer profession. To become a good lawyer, what needs to be done? Okay. So let's two requirements I want to know from you. To become a good lawyer, what is the first requirement? Yes. The recording is going on. Yes, recording is going on. So I've recorded so that session you can, if you want to, some part of the session I can send. Okay. So become a good auditor. Become a good lawyer. What is the first thing you are looking for in a lawyer? Yes, anybody can speak. Knowledge of the law. Okay. So Akshay is saying he should know. So how he will know the law? So he should know his law book, correct? So I just put here, the first thing requirement is you should know your law book. Very correct. This is the first basic requirement. So can I ask, what is the law book here? What is the law book for auditor? Auditor ki law book kya hai? Anybody can speak. Just exit and admit again. Okay, so I'm saying, so Sushil Kumar also want to join. So auditor's law book is, so can anybody explain what is the auditor's law book? हमारे लिए law book क्या होगा यहाँ पे? ISO standards, which we are following. Yes, okay, yes, Satish. So we are talking about, so हमारे लिए ISO standard हो गया है, वो हमारी law book हो गया है. इस book को हमें समझना है. So ISO बहुत बड़ा word है, इसे International Organization for Standardization. So ISO में बहुत सारी books होगी, correct? It may be a big library. So उसमें से कौन सा book हमें study करना पड़ेगा, so that we say कि we know this particular law book. ISO 9001. Exactly. So we are going for ISO 9001, released in year 2015. Okay, this is the law book I am studying. Is it clear? So we are very clear. We are going to audit as per this law book. Okay. So what do we mean by audit? It is not a requirement of an auditor.
Audit is never a requirement of an auditor. Audit is a requirement written in a standard. Okay. An auditor is just a representative of that standard, because standard itself cannot do audit because a dead thing. To make it live, we need auditors. So the book will speak through him. Okay. The book has to speak through him. So for this, you need to study this book and to become auditor. So ISO 9001 2015 is our law book. Second law book, anybody can say, which is a subset of it. इसे लॉ के अंदर रूल्स बोलते हैं. तो कोई रूल्स भी हैं हमारे पास. Yes, anybody can speak. Let's go slowly, Anna. We are not in a rush or hurry. Let's find out. Yes, somebody wrote. Okay, what is that? Process and SOPs. Very correct. Yes, yeah, Abhishek. Because the moment you write a procedure, it becomes a rule for the company. It becomes a order for the company. Correct? So can I say, जो ISO के साथ जो आपने SOPs लिख दी हैं, SOP everybody understand now after COVID, everybody understand what is SOP and process. So कोई भी procedure आपने लिखा है, any procedure you have written or a instruction you have written or a guideline you have written, it becomes auditable. अब इसका मतलब कोई बता सकता है क्या आपने कोई प्रोसेस लिखे हैं? आर यू अवेयर ऑफ दैट? कोई फ्लो लिखा है, प्रोसेस फ्लो लिखा है, कोई स्टैंडर्ड क्रिएट किया इनसाइड? यस, पॉलिसीज भी आपकी कंपनी में काफी सारी है. यस, यू हैव डन. सो जो इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे थे वो ये प्रोसीजर्स बना रहे थे विच इज इन लाइन विद द ISO 9000 स्टैंडर्ड विच इज स्टिल गोइंग ऑन एंड policies also part of it. Policies, procedures, standards. So this will become our law book. Okay, this entire is our law book. Okay, Abhishek want to enter. Okay. So is law book clear? So suppose we got first understanding that a good lawyer should have an understanding of law. But क्या उसको आप जाके अपना केस दे देंगे जिसको लॉ पता है? इतना काफी है या कुछ एक और सेकंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू लुक व्हिच इज वेरी क्रिटिकल? सो अब हम उस मुद्दे पे आते हैं. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. सो एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द सेकंड थिंग आई एम लुकिंग इनटू ए लॉयर प्रोफेशन इवन इफ और ही और शी नोज द लॉ बुक? कैन आई गिव माय केस टू him or her? What do you suggest? Or no, you will look something else also? Yes, can you think? And we have to go with the authorized persons only. Like in lawyer also they are the things. So whatever the person authorized to okay, tell about ISO 9001 or 2015, then we have to go with them only. See, for example, in doctor's proficiency also, right? Suppose you take it in this way, like you have a doctor's certificate, certified lawyer, a certified doctor also, but you have never practiced it at all. So will you go to the doctor with your case? What do you think? No, we have to go with specialized only, na? Okay, right. So that's why we have to go with the specialized person who know about 9001, ISO 9001. So first part is, Achin, what you're saying, right, is knowledge, correct? And knowledge is certified in terms of certain certificate, correct? That he or she knows. I am saying take this as a part of knowing the law book itself, because without test and qualification, I cannot say he or she knows the law book, correct? So I have to certify. But is anything else required to become a better or good lawyer or good auditor? This is what my question is. Means person certified from ISO body. हाँ, तो अगर कोई भी लॉयर सर्टिफाइड है, उसका लिस्ट में नाम है, तो उसको केस दे दोगे आप? सर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस दोनों चाहिए. ये नौ नीरज कुमार राइटिंग एंड यू आल्सो सेइंग. सर देखिए, कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, मे बी इट इज नॉट एप्लीकेबल इन अदर प्रोफेशन, दैट आई कैन नॉट ऑनर दैट प्रोफेशन इफ दे आर नॉट इन प्रैक्टिस.
Can I say practice is very important in certain profession? Why doctor? Suppose आपने डिग्री ली और 4 साल तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप सर्टिफाइड भी हैं, I do not know कि डिग्री आपकी वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी. Certain countries it becomes invalid if you are not in practice for certain years. Engineer के साथ ऐसा नहीं होता. Engineer is always an engineer once certified, but there are certain profession like lawyer, like doctor. Similarly, and also suppose you are a a fighter plane pilot, or you are into pilot profession. I am going to count your practice hours or flying hours, because your flying hours are less than you are certified as pilot. That is okay, but I am going to look into your flying hours. Flying hours is important. So for auditor, what is important now? Tell me what we are going to look after certification or during certification or later on. Yes. Experience. Yes. So how are we going to look into the experience? Very clearly, man days audited. How many days he has practically audited? आप सर्टिफाइड हो गए, 1 साल तक आपने कोई ऑडिट नहीं किया, सो प्लीज रिविजिट, बिकॉज दैट इज आल्सो ए न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड. ये पहले नहीं था, अभी ये रिक्वायरमेंट आ गया और ये आए हुए भी काफी टाइम हो गया, बट आई एम स्पीकिंग अबाउट इट कि सिर्फ सर्टिफिकेट होने से आपको ऑडिटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑडिटर एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन है लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स. सो आप उसको केस देंगे जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है. सर यू एग्री दिस पॉइंट? जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है उसको आप केस देंगे. अब इमेजिन एक डॉक्टर है, उसके लंदन की डिग्री है और वो ऑपरेशन कर रहा है किसी का, और उस आदमी से पूछ रहा है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है? नो, दिस इज माय फर्स्ट ऑपरेशन. हाँ, बट डिग्री लंदन से है. व्हाट यू विल से? सर एक आध पहले केस तो कर लिया होता है, एटलीस्ट गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस. So in certain cases, after certificate, practice or along with the certificate, practice is important. It is not either or. I need certificate and practice. It is not or, it is and. Is it okay? So practice के लिए क्या important हो जाएगा सर? Skills to practice. तो अब हम second discussion कर रहे हैं कि practice वही कर सकता है जिसके पास skills हों. सो ऑडिटिंग के लिए क्या स्किल रिक्वायरमेंट होगी? एक ऑडिटर को नॉलेज के साथ स्किल्स क्या चाहिए टू प्रैक्टिकली ऑडिट दिस सिस्टम? लेट्स लिस्ट डाउन वन बाय वन. यस प्लीज. व्हाट दे आर राइटिंग. गुड लिसनर, वेरी करेक्ट. सो नीरज कुमार इज सेइंग पहला है लिसनिंग एबिलिटी नहीं है, गुड कम्युनिकेशन स्किल. आप वो बोल ही नहीं रहा है कुछ तो ही कैन नॉट ऑडिट, राइट? सो कम्युनिकेशन स्किल. सो कम्युनिकेशन स्किल में मैं पूछना और लिसनिंग करना, लिसनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन, आई विल कंसीडर बोथ, बेसिकली टू एंड फ्रो फीडबैक. ओके, सो दिस इज वन स्किल. सो कम्युनिकेशन स्किल. ओके, एग्री. एनी अदर थिंग? यस, वन मोर क्वेरी इज कमिंग. Problem solving. Okay. Humble inquiry. Okay, this is another, interesting point is coming. So let me explain. Why we say humble inquiry. There is an etiquette, ethics of profession. So there is ethical requirement in this. What is the ethical requirement? किसी को कुछ नहीं पता है तो आपको पता है. It does not mean you will, shatter his all ego and image. In one of the audit, I was there in Bawal, and there was a CB guy, certification body we call it. CB is certification body. It is a third-party body which comes for the audit. So he was auditing a management review meeting, and during the meeting, he could find, that a calculation of PPM, parts per million. We normally say rejection in percentage, but some company note in parts per million PPM. So he could find that PPM calculation is wrong. उसने शीट पे देख लिया कैलकुलेशन गलत, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन और डिड नॉट इवन इन्फॉर्म कि ये पर्टिकुलर पैरामीटर आउट ऑफ ए एंटायर रिव्यू मीटिंग गलत है. सो व्हाट ही सेड, ये आप जो रिव्यू मीटिंग मुझे दिखा रहे हैं क्या ठीक है? सो द गाय से, हाँ सर दिखा रहे हैं, ठीक होगी, एक बार दोबारा चेक कर लो. उसने लैपटॉप वापस उसकी तरफ किया, उसको बोला सेकंड टाइम चेक करो. उसने बोला नहीं सर ठीक है, एवरीथिंग फाइन. एंड जैसे उसने वापस आया, उसने कहा पीपीएम का कैलकुलेशन चेक करो. उसने चेक किया,
तो बोला सर हाँ ये तो गलत है, तो एकदम वो नाराज हो गया। अगर पीपीएम कैलकुलेशन करने नहीं आता तो कहाँ से पढ़ाई की है तुमने, मतलब योर सर्टिफिकेट इज इनवैलिड, अपना इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, ही सेड इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो वो पूछने लग गया, तो उसने बताने की कोशिश किया किस इंस्टीट्यूट से किया। इन द मीन टाइम इज अगेन रिप्लाइड द ऑडिटर कि मैं इंस्टीट्यूट का इसलिए नाम नहीं पूछ रहा हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर इंस्टीट्यूट, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बाकी लोगों को पता चल जाए यहाँ से कभी नहीं पढ़ाई करनी है। कैन यू इमेजिन द वे ही एम्बैरेस्ड दैट गाय? This is not ethics. So they are ethical requirement of auditing. Then problem solving. Can you explain this, Ankita? What you mean by problem solving during the audit? What auditors? What exactly you want to say on that? Because humble inquiry, I understand. I explained it. Problem solving, meticulous attention. Yes, Kanubri, I understand. Listening. You have to be very attentive. What is happening inside? This is also one of the requirements. Problem solving, how we are utilizing it here? I guess there is in auditing purpose, there are like different kind of problems an auditor would be facing, like they are not getting the data on time, or they must be having different kind of issues related to this. So I guess if a person has good problem solving skill, only then he would be able to complete all these things and complete it on within deadlines. So Okay. I wrote that for that purpose. Okay, so you are saying the problem during the auditing, they face certain problem or challenges. So how he handle those challenges is part of problem solving. Am I right? Yeah. Okay, wonderful. So यहाँ पे ये बिल्कुल there is a requirement how to face challenges or handle those problems that you face during the audit, and you will definitely going to face certain issues during the audit. So concise and clear. Clarity in observation reporting. So reporting, this is one more requirement. I understand that very clearly. There is a requirement. This is a report writing skill. Sir, आपने कितना भी अच्छा ऑडिट किया, you may be very good auditor. जब थर्ड पार्टी आएगा वो आपकी रिपोर्ट पढ़ेगा. Is going to read your report. रिपोर्ट में आपने क्या लिखा है, if your report writing skill is poor, they will feel आपने ऑडिट ठीक तरीके से नहीं किया. This may not be true, but they will go by the records and the reports. So आप कितना भी अच्छा ऑडिटर हैं, साइट पे आपने कितना अच्छा भी काम किया है, physically you ask the right question, right record you have seen, but the report you are writing, that skill, the draft, the language is very very important. So हमारा एक रिपोर्ट राइटिंग स्किल पे भी एक स्किल सेट का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, हाउ टू लिसन अटेंटिवली, अटेंशन पे भी एक रिक्वायरमेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल का भी रिक्वायरमेंट होगा. बट रिलेटेड टू ऑडिट, आई एम नॉट गोइंग टू एंटर इनटू व्हाट इज कॉल्ड नो जनरल थिंकिंग. ओके, हाउ टू यूज कम्युनिकेशन फॉर ऑडिट पर्पस. नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, एग्री फॉर थर्ड पार्टी 100%. सो उसके लिए अब ये हाउ यू विल कम टू नो अबाउट द नॉलेज और बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, इसके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है. So there is a term called quality manual. आपको quality manual पहले मांगना है as an auditor कि अपना manual दे दो, आपका क्या business है, किस तरह के client हैं, what kind of processes you follow, what are procedures you follow, how many departments are there, how they interact with each other. So they will first ask for a manual, and based on the manual they will come to know आप किस तरह के business में हैं, and then only they will go for audit. उसमें policy भी लिखा होगा, आपका ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे होंगे, विजन लिखा होगा. सो दे विल कम टू नो कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस नेचर ऑफ बिजनेस में है, एंड हाउ दे आर रियली कैरिंग देयर बिजनेस, एंड देन दे विल कम फॉर ऑडिट. विदाउट क्वालिटी मैनुअल दे विल नॉट कम फॉर ऑडिट. सो इसलिए अगेन ए वेरी गुड रिक्वायरमेंट यू रोट कि हमें बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए. ओके, सो प्रकाश इज रिटन, सो एग्री. और कोई स्किल चाहिए? कुछ स्किल मिसिंग हो रहे हैं अभी, राइट? ये जनरल स्किल्स तो आ रहे हैं, बट मेरे को वो स्किल नहीं आ रहा जो और भी क्रिटिकल है ड्यूरिंग ऑडिट. सो मैं इसलिए रुका हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सर्टेन मोर थिंग. So anybody can write few more skill set. Maintaining confidentiality. ठीक है, बिल्कुल agree. So audits are confidential report. They are not public thing. But कुछ audit जो public, like CAG audit है,
वो आपका पार्लियामेंट में रख दिया जाता है in front of people. So some part of is transparent, some part is confidential. I agree, but everything is not confidential in audit. I tell you very clearly, because audit finding must be reported to the management. They will be discussed in management review meeting. So 100% everything is not confidential, but certain important feature of the business which is not to expose to any competitor or outside the business is confidential. Understanding of the operation and process of the, okay, we already discussed that understanding is through quality manual. Knowledge of auditing process as per the standard. This is the first part. Kanup, we have already discussed that ISO 9000 knowledge hona chahiye, standards ka, SOP ka. So let me write few skills, okay? Sampling skill. As you may be aware that I cannot do 100% testing of all the requirement of the system. I have to do samples checking. So if I want to check in HR, are people getting trained? How you're going to proceed? Not checking each and every guy's record, sample few people. If I am going to check how sales are executed, how orders are executed, I will sample certain projects from the project management, but I am not going to check each and every project. So it is a sampling method. So how a auditor select a sample? और कभी आपने नोट किया हो ये कि जो सैंपल ऑडिटर पकड़ता है उसी में प्रॉब्लम मिल जाता है. तो ये भी एक आर्ट है. अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे. हाउ दे कलेक्ट द सैंपल. और हम कहते हैं सब कुछ ठीक है, बस इसी में प्रॉब्लम था और वो ऑडिटर के हाथ में आ गया. So this is not by chance. They are trained on that sampling method. So we'll speak about that. So one skill is how to sample things. Sampling is an art. How to select samples so that you can detect the problem. You can find that something is going right or wrong in the system. So कोई भी टेस्टिंग होगी, कोई भी वेरिफिकेशन होगा, कोई भी इवैल्यूएशन होगा, वो सैम्पलिंग बेसिस पे होता है. 100% करना बहुत मुश्किल होता है. आपने नोट किया होगा सर, इस सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट, वेदर आपका सप्लायर पार्ट्स आ रहा हो, इवन कोविड टेस्टिंग होगा, उसमें भी सैम्पलिंग होगा. कोई 100% कोई टेस्ट नहीं हो रहा होगा, कुछ सैंपल्स सेलेक्ट कर रहे होंगे, यही मेथड होगा. व्हाट डू यू से? So that's the only way to move further to evaluate a system, to check the health of the system. Okay, so sampling एक method हो गया, report writing एक हो गया, communication skill हो गया, listening skill हो गया. So we are writing all, questioning skill हो गया, attentiveness हो गया, right? And sir एक skill और important है या नहीं है? Judgment skill. What is called judgment? सर एक सिनेरियो मिला आपको ऑडिट में, अब आपको एक जजमेंट लेना है. इज इट ए नॉन कन्फर्मेंस और इट इज ए कन्फर्मेंस? बिकॉज आप वहां एक जजमेंट सुना रहे. यू आर ऑल्सो नॉट एक्टिंग लाइक एन लॉयर, यू आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक ए जज ओवर देयर. यू टू टेक ए कॉल, दिस सिचुएशन इज ए नॉन कन्फर्मिंग, और इफ समथिंग इज नॉन कन्फर्मिंग यू रेज एन एनसी रिपोर्ट, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट. इफ एनीबडी हैज हर्ड ऑफ दिस टर्म एनसी. अगर आपने गलत नॉन कन्फर्मेंस दे दिया, इससे बैड जजमेंट. अगर आपने छोड़ दिया और वो एनसी था एरिया, बैड जजमेंट. सो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज देयर हैज टू बी अ जजमेंट स्किल. इफ योर जजमेंट इज रॉन्ग, द एंटायर थिंग इज रॉन्ग, द फाइनल स्टेटस इज रॉन्ग, द एंड रिजल्ट इज रॉन्ग. So sampling skill, judgment skill, report writing skill, observation skill, questioning skill, listening skill, and so on. So there are many set of skill we need to talk about it. और ये बिना प्रैक्टिस के आते नहीं है, ये प्रैक्टिसिंग स्किल है, ये नॉलेज बेस्ड स्किल नहीं है. जैसे टू ड्राइव ए कार, द नॉलेज विल हेल्प टू सर्टेन एक्सटेंट, बट आफ्टर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस इट. ओके, सो final take for this, sir, what is day one for me? ये skill sets हो गए, requirement, very correct. So day one मेरे लिए क्या है? जो मेरा एजेंडा है वो है to know the law book. और day two क्या है मेरे लिए? Day two मेरे लिए है जो skills मेरे को acquire करने हैं, उसके ऊपर discussion. That is why it is a 2 days program. ऐसा हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट डे 1 की डे 2 में डिस्कस हो, डेफिनेटली होगा. सो ये बाइफर्केशन हमारा ये हो गया है. सो 2 days एजेंडा फॉर इंटरनल ऑडिटर्स प्रोग्राम. और यहाँ पे आई एम टेकिंग स्मॉल पॉज ओवर हियर.
क्या एजेंडा क्लियर हो गया है प्रोग्राम का डे 1 एंड डे 2? दैट वाज द इंटेंट ऑफ डिस्कसिंग दिस. So why it is a 2 days program, today and tomorrow, and it covers what? Yes, so Abhishek is saying yes. So I hope everybody, किसी को नहीं, I have stopped here, right? किसी को एजेंडा क्लियर नहीं है, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, 2 दिन का प्रोग्राम किस लिए है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑडिटर्स प्रोग्राम एक क्वालिफिकेशन प्रोग्राम है, 2 दिन का डिवाइड किया है. फर्स्ट डे क्या डिस्कस होगा, डे 2 क्या डिस्कस होगा, डिस्कशन करने का लॉजिक क्या है, ये हमने अभी तक एजेंडा सेट कर दिया. वी हैव रोल्ड आउट द एजेंडा एंड एनीबडी इज नॉट क्लियर ऑन द एजेंडा, then he will not understand what is going forward. Okay, so please ask if somebody is not still clear on the agenda. And Neeraj, are you able to see slides now or? Yeah, I can see it very well now. Okay, now you can see. There was no feedback, so I said let's. Because you were busy in between, so I thought. Yeah, not I to understand. disturb. So it's my job to ask you. Yeah, I agree. So the first logic is हमारा 2 दिन का एजेंडा में क्लियर होना चाहिए. और हम डे 1 पे किस एजेंडा में फॉरवर्ड करेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड इज अंडरस्टैंडिंग आवर लॉ बुक. व्हाट इज आवर लॉ बुक? ISO 9001 2015 एंड आवर SOPs. SOPs यू ऑलरेडी नो, हम लोग सारा दिन डिस्कस करते हैं. 9001 स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे सब कुछ बन रहा है वो हम आज डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट स्टैंडर्ड एंड देन सेकंड डे विल टॉक अबाउट द स्किल सेट एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट एज यू नो. एंड देन थर्ड विल बी व्हाट? There will be practical assessment for you to qualify you as people said certified होना चाहिए and all. And I hope जो ये 2 दिन का प्रोग्राम अटेंड कर रहा होगा, चीजें समझ रहा होगा, you can easily qualify. जिसने अटेंड नहीं किया होगा डायरेक्टली टेस्ट अटेंड करेगा, it is difficult to qualify. So as simple as that. So I am moving forward now, sir. Okay, assuming that okay up to here it is fine. So मैं यहाँ पे एक रोल का भी डिस्कशन करना चाहता हूं. सर एक ऑडिटर, एक नया रोल ऐड हो गया आपका. अगर आप ऑडिटर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका एक नया रोल ऐड नहीं हो गया. आप पहले HOD, कोई डिपार्टमेंट हेड है, कोई इंचार्ज है किसी सेक्शन का, somebody is handling some responsibility, role and responsibility. तो एक नया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो गया. व्हाट डू यू से? पार्ट टाइम ही सही, नॉट फुल टाइम. यस, सो देयर रोल हैज बीन एडेड. सो एक रोल का एक कंफ्यूजन आता है हमेशा. यस, ओके, पूजा इज सेइंग यस, यस सतीश, यस. सो देयर इज ए न्यू रोल एडेड. और अगर रोल ऐड नहीं हुआ तो आप एक्ट करोगे ही नहीं. सो रोल हैज बीन एडेड. यू वंस यू बिकम ऑडिटर, सो ऑडिटर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी हो जाती है. अभी आपने देखा है जितनी भी इश्यूज हुए हैं आज तक, फ्रॉड हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं सिस्टम में, वो बताया किसने? अपोजिशन पार्टी ने नहीं बताया, मीडिया ने नहीं बताया, ऑडिटर ने ढूंढ के लेके आया. कैग का नाम सुना है किसी ने? Anybody has heard of CAG kind of thing? न्यूज में आता रहता है. यस, कॉर्पोरेट ऑडिटर जनरल, यस, सेंट्रल ऑडिटर जनरल और कॉर्पोरेट ऑडिटर जनरल. सो ऑडिट बॉडी है बेसिकली. ये ऑडिट बॉडी ऑडिट करके जितनी पब्लिक सेक्टर्स और कंपनीज में बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है. सो जैसे कोलगेट है या और भी 2G 3G व्हाटएवर, ये इन लोगों ने ढूंढ के लेके आए. लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा सिचुएशन भी होती है, सत्यम का प्रॉब्लम हुआ था या किसी और का हुआ था. तो अब ये लोग सोचने पे मजबूर हैं कि ऑडिटर क्या कर रहा था. अगर इतने बड़े इश्यूज हो रहे हैं तो सिस्टम में जितनी वीकनेस है, अगर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट का सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो ये अकेला इतना कहना काफी नहीं है. हमें ये भी कहना पड़ेगा जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा था वो सो रहा था. व्हाट वाज हिज अटेंटिवनेस? बिकॉज आई कैन नॉट ऑडिट, आई एम नॉट ऑथराइज्ड. मैं अगर जाऊंगा सरकारी दफ्तर में बोलूंगा आपका सिस्टम ठीक नहीं है, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन देम टू दैट एक्सटेंट. बट ऑडिटर हैज ए अथॉरिटी. सर ऑडिट बिना अथॉरिटी के नहीं होता.
Audit means there is an authority with you. ऑडिट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है तो अथॉरिटी भी मिलती है. आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आप सिस्टम पूछ सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, फाइल देख सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता. अगर कोई मना कर रहा है सो दिस इज अ वायलेशन ऑफ सिस्टम, तो वैसे ही नॉन कन्फॉर्मेंस हो जाएगा, यू कैन नॉट वायलेट. और जो ऑडिट कराता है उसको हम ऑडिटी बोलते हैं. आई एम जस्ट यूजिंग दिस टर्म जस्ट टू मेक यू क्लियर. ऑडिटी है जो ऑडिट करा रहा है, ऑडिटर है जो ऑडिट कर रहा है, राइट. सो देयर आर टू name we have assigned, auditor and auditee. So auditee मना नहीं कर सकता ऑडिटर को, बिकॉज उसके बाद अथॉरिटी ऑडिट करने के लिए. बस ये कह सकता है कि ऑडिटर साहब आ गए हैं, 10-5 मिनट टाइम दे दो मुझे, मैं अभी आता हूं. बट he has to follow the audit process. He cannot violate the auditing practice. So आप कुछ रोल का कंफ्यूजन आता है क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब में हो, आप 100% ऑडिट जॉब में नहीं हो, तो आपको क्या कंफ्यूजन आएगा, लेट मी एक्सप्लेन. वो कंफ्यूजन ये है कुछ. द कंफ्यूजन रोल का जो आता है, वो क्या कंफ्यूजन आता है, 2 कंफ्यूजन आते हैं. एक है आप ऑडिटर भी हैं और साथ ही साथ अपने एरिया के आप इम्प्लीमेंटर भी हैं. मतलब एक वक्त में तो आप ऑडिटर साहब बन जाते हैं और कुछ ही पल में आफ्टर सम टाइम यू बिकम एन ऑडिटी. Deolin want to join? Okay. ऑडिटी बन जाते हैं. ऑडिटी मतलब इम्प्लीमेंटर, जो इम्प्लीमेंट करता है सिस्टम को. सर इन दोनों के रोल अलग होंगे या सेम होंगे? ऑडिटर रोल एक ही, आदमी एक ही है, पर्सन इज सेम. फर्क क्या है, कभी वो ऑडिटर रोल में, कभी वो इम्प्लीमेंटर के रोल में. सो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल डिफरेंट होंगे या सेम होंगे, क्या लगता है? Yes, so there's some feedback. डिफरेंट होंगे. अगर ये रोल आपने डिफरेंट होंगे, वेरी करेक्ट, आई ऑल्सो 100% एग्री, डिफरेंट होने चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बैगेज बोलते हैं ना, इतने टाइम ऑडिटी रहने के बाद जब ऑडिटर जाता है तो बिहेव इम्प्लीमेंटर की तरह करता है, ऑडिटर की तरह नहीं करता. और जब उसका ऑडिट हो रहा होता है तो सडनली वो इम्प्लीमेंटर की तरह बिहेव करना चाहिए. वो ऑडिटर साहब बन जाते हैं कि मैंने भी ऑडिट अटेंड किया, ऐसी बात थोड़ी ना, आई एम आल्सो एन ऑडिटर. इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ऑडिटर हैं, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू आर इन सर्टेन रोल, यू हैव टू रिस्पेक्ट द रोल. और रोल चेंज होते ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सब कुछ चेंज हो जाएगी. एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको समझते हैं कि अगर ये रोल स्वैप हो गया तो आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है. ऑडिटर ऑडिटी की तरह बिहेव करने लग गया इम्प्लीमेंटर की तरह, और इम्प्लीमेंटर ऑडिटर की तरह बिहेव करने लग गया, तो आपका पूरा सिस्टम यहाँ कोलैप्स हो जाएगा. कैसे, लेट मी एक्सप्लेन इट. ऑडिटर जब इम्प्लीमेंटर नहीं है एंड ही इज ऑडिटिंग द सिस्टम, उसका काम क्या होना चाहिए? उसका काम सिंपल होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड में लिखा है उस रिक्वायरमेंट को ऑडिट करना है. Audit the minimum basic requirement. क्यों सर? Minimum basic requirement written in the standard. अब ऑडिटर अगर बेस्ट प्रैक्टिस पूछने लग जाएगा, ये क्यों नहीं करते, ये भी क्यों नहीं करते, तो दुनिया में देयर आर 1000 बेस्ट प्रैक्टिसेस और 10,000 बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो हर बार ऑडिट में आपकी एनसी निकलती रहेगी. आप बोलोगे टीक्यूएम क्यों नहीं प्रैक्टिस किया, टीपीएम क्यों नहीं प्रैक्टिस किया, डब्ल्यू वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं प्रैक्टिस किया, ये वाला सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज किया. तो अगर मैं ऑडिट बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से करूं तो आपका कोई भी ऑडिट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि एज ए इम्प्लीमेंटर की तरह बात कर रहे हो आप. ऑडिट को बेसिक, ऑडिटर कहता है बेसिक फॉलो करो, बेसिक सिस्टम फॉलो करो. अगर वो भी फॉलो नहीं कर सकते तो मैं एनसी दे दूंगा. दैट्स व्हाट द ऑडिटर इज सेइंग. इम्प्लीमेंटर क्या गलती करता है, जब उसका ऑडिट हो रहा होता है वो एज ए इम्प्लीमेंटर बात ही नहीं करता, वो एज एन ऑडिटर बात करता है. इम्प्लीमेंटर का क्या काम होगा, जब ऑडिटर कोई सवाल पूछेगा कि आपने ये क्यों नहीं किया, तो वो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ लिखा है ऑडिट में, दिखाओ, स्टैंडर्ड में लिखाओ. हिज जॉब इज टू इम्प्लीमेंट द बेस्ट प्रैक्टिस. वो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं देखेगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगा. स्टैंडर्ड में जो नहीं लिखा उसको भी इम्प्लीमेंट करेगा. दैट इज द जॉब ऑफ इम्प्लीमेंटर. सो इम्प्लीमेंटर मिनिमम पे काम नहीं करेगा, वो मैक्सिमाइज बेस्ट प्रैक्टिस पे काम करेगा. ऑडिटर मिनिमम रिक्वायरमेंट को चेक करेगा. तो अगर ये रोल रिवर्स हो गए, स्वैप हो गए, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है.
इसलिए कोई ऑडिटर सक्सेसफुल नहीं होता, वो हम्बल ऑडिटिंग भी नहीं हो सकती जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर इम्प्लीमेंटर बन जाता है, इम्प्लीमेंटर ऑडिटर बन जाता है, एंड दिस इज हाउ द कंफ्यूजन स्टार्ट्स। सो इज दैट पॉइंट क्लियर सर? तो आप किस रोल में हैं? अच्छा, आदमी एक ही है, ऑडिट रोल में गया, इम्प्लीमेंटेशन भूल जाओ, ऑडिटर बन जाओ, वापस ऑडिटी बन गए, ऑडिटर रोल भूल जाओ। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? जब भी आप कोई सवाल पूछोगे मुझसे तो मैं आपसे एक चीज जरूर पूछूंगा, ऑडिटर पूछ रहा है ये सवाल या इम्प्लीमेंटर पूछ रहा है, बिकॉज मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। अगर इम्प्लीमेंटर पूछ रहा है तो मैं अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा, अगर एज ए ऑडिटर आप पूछ रहे हो तो मेरा रिस्पॉन्स अलग हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि एक ही चीज को मैंने अलग अलग आंसर क्यों कर दिया, बिकॉज सवाल किसने पूछा है, आप किस रोल में पूछ रहे हैं सवाल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये बात समझ आ रही है किसी को? एनीबडी कैन स्पीक ऑन दैट, एम आई सेइंग करेक्ट और नॉट, इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट? रोल अंडरस्टैंडिंग, या पवन? यस, मुझे एक, आई रिमेम्बर वन मूवी, या सतीश, I remember one movie, if you have seen, old time movie, okay, this Diwar, or Amitabh Bachchan's very popular scene. I really like that statement, I will say. वो जो statement है वो मुझे पसंद है. Both are brothers, okay, but one is a thief, one is a cop. Everybody knows that whole story. So how they start interacting with each other, वो पहले ये set कर लेते हैं. वो कहते हैं कि इससे मैं कौन मिलने आया है, मतलब you tell me, पूछ कौन रहा है. अगर भाई पूछ रहा है तो वैसे जवाब दे देंगे, बट अगर चोर पूछ रहा है तो फिर पुलिस जवाब देगी ना. सर वी हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द रोल, वी हैव नो अदर चॉइस. सो दैट स्टेटमेंट आई रियली लाइक दैट एज ए बट इट्स अ मूवी, बट इट्स ए वेरी गुड अप्रोच. सो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिटर पूछ रहा है तो मैं उतना ही जवाब दूंगा, अगर इम्प्लीमेंटर पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा ये भी इम्प्लीमेंट करो, स्टैंडर्ड में क्या लिखा है भूल जाओ, थोड़ा ज्यादा इम्प्लीमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. वह ऑडिटर पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा ये सारी चीजें मत पूछो, इतना ही पूछो, व्हाई यू ट्रबलिंग द ऑडिटी. सो माय रिस्पांस विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स. सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. Any question somebody want to ask, so that I move to next? किसी कोई सवाल पूछना सर? up to here, what is the auditor role, what is audit rule, what is the difference? एक minimum requirement पूछेगा, एक best practice पे चलेगा. अगर मैं इसको summarize करूं, ask anything, unmute करके भी आप पूछ सकते हैं. हाँ पूछ सकते हैं, यहाँ कोई there is no regulation, right? इच्छा को दबाना नहीं है, पूछ लेना. I agree. Okay, and there is no force also, I can move forward also. Okay, so this is just understanding your role. रोल का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. रोल कंफ्यूजन हो गया तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, और आपको काफी टाइम से आप इम्प्लीमेंटर के रोल में हैं तो एक बार ऑडिटर रोल में जाने से थोड़ा सा आपको उस रोल में पहुंच नहीं पाते हैं, और कई बार ऑडिटर ज्यादा बन जाते हैं तो फिर वो रोल निकलता नहीं है ऑडिटी बन के भी. अगर मैं इसको रफ लैंग्वेज में बोलूंगा तो इतनी बातें की हम, देयर इज नथिंग एल्स वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो लेट्स मूव. सब ये स्टैंडर्ड जो आया हमारे ISO 9000, ये चेंज होके आया हमारे पास 2015 में. मतलब क्या है, कोई भी स्टैंडर्ड 6 से 8 साल के दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड गेट रिवाइज्ड इनटू ए न्यू स्टैंडर्ड. अब ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? सर 6-8 साल में हम स्टैंडर्ड को बदल देते हैं, चाहे वोटिंग करनी पड़े, चाहे एक एक कंट्री को बैठना पड़े, डिस्कशन करना पड़े. वांट टू गेट एंटर, ओके. सो या हमें डिस्कशन करना पड़े, उस पर पार्लियामेंट बुलानी पड़े, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, बट हम लोग डिस्कशन करके, रिवीजन करके, ड्राफ्ट वर्जन बुला के फाइनल रिलीज कर देते हैं. बट हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या वी वांट टू ट्रबल पीपल? एक आदमी ने स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर दिया है, अब उसको फिर चेंज कर दो. वी वांट टू ट्रबल द इंडस्ट्री, वी वांट टू मेक पीपल ऑलवेज ऑन देयर टोज टू वर्क.
what is the logic? We want them to always, have some kind of confusion कि पहले वाले में ये लिखा था, वाले में, मतलब क्यों change करते? Why we change a standard? Anybody want to speak or write? Sir, industrial dynamics की वजह से. Yeah, industrial dynamics. Yeah, Neeraj, this is one point. Then one is writing Neeraj, involvement of in business ecosystem changing regulating for it. Correct. So basically, yeah, one more response is there. The environment in which we are working is not constant, so we have to change. Very correct. So because of the change in the environment, very correct. Market scenario बदल रहा है, business बदल रहा है. Last 10 साल में देखेंगे हर business में change आ चुका है. Banking sector has evolved, automotive has evolved, and so अभी तो 10 साल भी क्या 5 साल में भी change आ जाएगा. So अब छोटे छोटे पीछे जाएंगे तो changes आ रहे हैं. So वो changes को हम लोगों को incorporate करना पड़ता है. अगर standard पीछे चलेगा, business आगे चलेगा, so we cannot follow the standard. Corporate frauds coming into picture because of loopholes, yes, in the standard. Agree. So standard को वो भी bridge करना पड़ता है, loopholes को bridge करना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है. देखिए लोग क्या करते हैं, केसेस को हैंडल करते हैं, वो loopholes को हैंडल नहीं करते. मुझे अच्छी तरह याद है that I was sitting in somebody's home and the moment I sat on his sofa, एक आवाज आई, tuck, like that, and mouse trap वो वाला था equipment. So उसने बोला सर मैं आता हूँ अभी, इसको छोड़ देता हूँ बाहर, और चूहा पकड़ा गया ट्रैप. So he came back. I said congratulations. कब से लगा रखा होगा, आपने पकड़ लिया? कह नहीं सर, क्या congratulations, मतलब हर दिन 3-4 चूहे फेंकता रहता हूँ. मेरे को एक कंफ्यूजन हो गया. What is the confusion? एक तो ये नहीं पता घर में चूहे कितने हैं, 4 दिन से ये हो रहा है, और ये भी नहीं पता सेम चूहा बार बार आ रहा है या नहीं आ रहा. So अभी लॉजिक क्या है, अगर लूप होल है, कहीं से आ रहा है, तो वो आप तो डेली यही काम करते रहोगे. एक केस पकड़ोगे फ्रॉड का, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा पकड़ोगे, फिर एक और आ जाएगा. एक को सजा दोगे, दूसरा बंदा तैयार है. तो इस सिस्टम को क्यों नहीं ब्रिज किया? So very correct what you said, Neeraj Kumar, you writing correct. Company Act got revised post Satyam fraud, तो सिस्टम बदलने पड़े, न्यू सिस्टम लाने पड़े, एथिकल रिक्वायरमेंट लानी पड़ी, एंड सो ऑन. सो ये जो चेंज हो रहा है ये गलत नहीं है. सो वी embrace that change, we welcome that change, and so on. अब ये चेंजेस कब से शुरू हुए हैं? सो मैं ISO का थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट. ISO 9001 1994 में आया. ये काफी ओल्ड स्टैंडर्ड था. अक्षय वांट टू जॉइन. सबसे पहला स्टैंडर्ड आया मुझे याद है when I got trained in 92 on a draft version, and 94 we implemented the system when I was in telecom industry. तो मुझे क्या सिखाया जाता था कि ISO एक सिस्टम आया है जो ये कहता था जो करते हो उसको लिख लो, जो लिखा है उसको करते रहो, बस यही होता है. इतना सिखा के हमें छोड़ दिया था, और वो हम 10-20 साल हमारे दिमाग में बैठ गया. लेकिन वो सिस्टम चेंज हो चुके हैं, वो ऐसा सिस्टम नहीं. आज भी लोग यही करते हैं, जो कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं, जो लिखते हैं उसको करते रहते हैं, चाहे गलत ही कर रहे हो. करेक्ट. सो उसको गलत सिस्टम बना लेते हैं, एंड देन वी से कि हम तो अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे सर. सो अभी ये SOP अप्रोच नहीं है, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है. प्रोसेस ये होता है अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, चेंज द सिस्टम. प्रोसेस इज इनपुट एंड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट. SOP इज ए फिक्स प्रोसीजर, प्रोसेस इज डायनेमिक. सो अभी हम लोग प्रोसेस अप्रोच तक पहुंच चुके हैं, बट पहले का जो स्टैंडर्ड था PDC अप्रोच पे आ गया है. पूजा व्हाट सेइंग इज करेक्ट. प्लान डू चेक एक्ट जो अभी भी रिक्वायरमेंट है, बट पहले ऐसा नहीं था. सो एक सिस्टम बेसिक आया था 1994 में, लेकिन लोगों क्या वो मेमोरी में अंदर बैठ गया है कि वो डॉक्यूमेंट बनाते रहो. तो फिर इनको मजा नहीं आया डॉक्यूमेंट बना के, तो उनको लगा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट और बढ़ा दो. सो 2000 में स्टैंडर्ड रिवाइज कर दिया, ये भी करो, इतने रिकॉर्ड बनाओ, 20 रिकॉर्ड होने चाहिए, इतने तक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. कंट्रोल और डॉक्यूमेंट, कंट्रोल और रिकॉर्ड्स की काफी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने क्लियर की. सो वो डॉक्यूमेंटेशन लेवल काफी इंक्रीज हुआ. एग्री. तो 2000 ऑलमोस्ट कितने साल होंगे आप अगर कैलकुलेट करोगे, 6 साल में बना दिया, राइट. फिर 7 साल लेंगे कभी, बस 6-8 के बीच चलता रहेगा. फिर उन्होंने 2008 में दे केम आउट विद सर्टेन न्यू रिक्वायरमेंट, ऑप्टिमाइज द सिस्टम, रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा सिस्टम बना दिया.
but 2015 में they have made a very drastic changes, I can say. So this is the latest version which is available, 2015, and we have to adopt to this level of version. Okay, so this is the version we are looking for, and to audit this particular version, it has many new aspects which we will discuss during our program. So it's a newer version है. ये न्यू वर्जन क्यों है? बिकॉज वो मार्केट बदल गया, सो वी हैव नो चॉइस. अब रिस्क बेस्ड हो गया है, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं है. यू कैन सी टुडे व्हाट रिस्क वी आर फेसिंग, एवरीथिंग इज अंडर रिस्क. सो रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आ गया, अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आ गया. सो वंस वी गो इनटू इट, विल टॉक ऑन दैट. सो वी हाउ द जर्नी स्टार्टेड. सो 2015 से पहले जो वर्जन था वो 2008 वर्जन था, जो 2015 में आ गया. 15 को भी आए हुए बहुत टाइम हो गया. ओके, बट वो 5 साल तक हमें नया होता है, 6, 7, 8 साल में चेंज होता है. सो वी आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दैट दिस पर्टिकुलर वर्जन.